नमस्कार। वेलकम टू कुंडली कंसल्ट। कुंडली कंसल्ट में आपका स्वागत है। हर बार की तरह यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जिनको हिंदी देखना है वो आगे स्क्रॉल करके हिंदी वाला सेक्शन देख सकते हैं। सो नाउ द इंग्लिश पार्ट। वेलकम once again to Kundli Consult. First, let me thank all my viewers, a lot of you who have sent me direct WhatsApp message appreciating my previous video, which was on concept of remedies. If you haven't watched it, please go to my channel and definitely watch that on concept of remedies. Coming to today's topic, today and tomorrow we are celebrating Guru Purnima. So let's talk about Guru or Dev Guru Brihaspati. Now, Brihaspati is associated with Vaman avatar of Vishnu. In fact, each of the 9 grahas are associated with the 9 avatars of Vishnu. So Jupiter is associated with Vaman avatar, the dwarf priest who came to demon king Bali asking for 3 foot worth of space or land. Now the story goes that demon king of Bali, who was in the family tree of Prahlad, so he was one of the good demons, but as any king demon, he wanted to rule the world. So after winning the underworld, that is the Patal Lok, earth, that is the Bhulok, he wanted to rule the heavens. That time, Daitya Guru Shukracharya advised him to do a yagna so that he could get the powers to defeat Indra. Indra, of course, then went to Lord Vishnu and said that even if Bali is good, but if a demon rules the world, then tomorrow you don't know what would happen. So Vishnu took the avatar of a dwarf priest, Vaman, and went to Bali's door. Bali was known to grant people whatever they asked for. Something like what you have heard of Karn in Mahabharata. So Lord Vishnu in Vaman avatar goes to him and says that I want 3 steps, my steps worth of land or space. Of course, seeing his short stature, Vali laughed it off and said, "You can have it." Daitya Guru Shukracharya, of course, saw through this and warned Bali, but Bali did not listen to him. So once the promise was granted, Lord Vishnu's Vaman avatar grew in size. In one step, he measured the entire earth and the Patal Lok. In second step, he measured the entire heaven so that Bali could not get it. And still there was a third step to be taken. So then he asked Bali, where should he place this third step? Not having anything else, Bali put his head forward and said to Vaman avatar that he could put his third step on his head. And that way, Bali succumbed. Now, of course, Vishnu was so happy with his ability to keep the promise that he promised Bali that in the next eon, that is in next universe, when it is born, he would become Indra, and till that time, as a soul, he could rest in Vaikuntha. Now, here comes the astrological sutra from it, which I have seen through hundreds of horoscopes. Wherever Jupiter is placed in your horoscope, in whichever house, Jupiter destroys at least one of the significance in that house, which is related to material aspect. So if Jupiter is in your 10th house, and if it is alone, or if it is in a very powerful position by words of being in Mool Trikona or in exalted position or in high degrees, then it is more powerful and the destruction of that one significance comes through very easily. So if he is in your 10th house, which is house of career, then often you'll see that at some point in time, he destroys your career or he takes away your job in a most astonishing manner. Now, to give you an example, let's talk about Lord Ram's horoscope. Now, a lot of you will say,
how do you know the date of birth and time of birth of Lord Ram? Well, that's not necessary. If you read Valmiki's Ramayana, Lord Ram's time of the birth, in fact, is recorded by placement, by giving position of each of the grahas in which Rashi, which nakshatra they are in. So you can actually draw up the horoscope of Lord Rama. In fact, that is a very studied horoscope by astrologers. Now, if you look at Lord Ram's horoscope, Jupiter is an exalted position, which means very powerful, and it sits in its Lagna. Now, Lagna, one of the significance is whatever the comfort or the physical comfort that you face in your life comes from the Lagna. And look at what happened in Ram's life. As soon as he was going to be crowned as the prince of Ayodhya, sage Vishwamitra comes, takes him away from all the luxuries and comfort of his life, and here he goes to the forest to kill the demons. Again, when he comes back and is ready to be crowned as king of Ayodhya, he is supposed to get the chair of Ayodhya. His stepmother Kaikeyi asks Dashrath for Lord Ram to be sent to exile. So again, that kingship goes away from him. So throughout, if you see, Jupiter being such a strong position in his Lagna destroys his physical comfort in his life. So wherever Jupiter is there in your horoscope, one significance which is associated generally with material life, materialistic life, gets destroyed. Another thing about Jupiter, whenever you are passing through the Vimshotri Dasha of Jupiter, which is of 16 years, about 16 years, in the middle period, 2 to 3 years at least, a time comes when suddenly you give up something, or circumstances force you to give up something without you having thought about the next step. So people suddenly give up their job without a job in hand. People suddenly leave their house without a house in their hand. And what you need at that time to cross over that period successfully and restart again is a guidance of somebody. Circumstance will force you that you go and consult, or somebody will come into your life who can be your friend, who can be your teacher, who can be your father, who can also be an astrologer, who will guide you. And it is very important for you to have faith in that person, that one person in that period, for you to successfully transit that period. If you do that, then the next phase of the last phase of Jupiter Dasha, Vimshotri Dasha, becomes very good. And sometimes it also happens during Antardasha of Jupiter. If Jupiter Dasha is, at the very beginning of your life when you're a small kid, or comes very late where you may not survive, then it happens during the Antardasha in a major period of your life. I hope you have liked the video. Do share it with your friends and relatives so that the true knowledge of astrology spreads. Subscribe to my channel so that you continue to get my videos. Thank you. Thank you once again for listening to me. एक बार फिर आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया और बताया किस तरह वो मेरे उस वीडियो से, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज से, उपायों के रेमेडीज से, उपायों से के उस वीडियो से किस तरह प्रभावित हुए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए उसको। उससे आपको उपायों के बारे में सच्चाई क्या है आपको पता चल पाएगा। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज और कल गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसलिए आज गुरु बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। और मैं जो ये आपको आज बताने वाला हूं, ये एक बार फिर मैंने एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से लिया है। बृहस्पति को विष्णु के वामन अवतार से जोड़ा जाता है। इनफैक्ट जो 9 के 9 ग्रह हैं,
हमारे हॉरोस्कोप देखने के लिए, कुंडली देखने के लिए, उन 9 ग्रहों को विष्णु के 9 अवतारों से जोड़ा जाता है। तो वामन अवतार को विष्णु देवगुरु बृहस्पति से जोड़ा जाता है। कहानी यूं है कि जब प्रहलाद के पौत्र बलि जो दैत्य राजा थे, हालांकि वो दैत्य होते हुए भी एक अच्छे राजा थे, पर एक राजा होने के नाते उनके ये मन में आया कि वो भी पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करें। तो उन्होंने पाताल लोक जीता, उन्होंने भूलोक जीता, और अब वो स्वर्ग जीतना चाहते थे, इंद्र को हराना चाहते थे। तो इसके लिए उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने एक बड़ा यज्ञ करने को कहा। इंद्र इससे भयभीत हो गए और विष्णु के पास गए और बोले कि है तो बलि एक अच्छा राजा, पर फिर भी एक दैत्य है, और इसलिए अगर वो स्वर्ग का आधिपत्य करता है तो फिर कल को कुछ भी हो सकता है। तो उस समय विष्णु ने बलि को रोकने के लिए वामन अवतार का रूप लिया। एक छोटे ब्राह्मण के रूप में वो बलि, राजा बलि के सामने आए और उनसे उन्होंने 3 पग भूमि या 3 पग जमीन की मांग की। बलि के बारे में यह कहा जाता है कि उनके द्वार में जो भी आता था वो उनको कभी निराश नहीं करते थे, जैसे कि आपने कर्ण की कहानी सुनी होगी महाभारत में। तो यज्ञ शुरू होने से पहले विष्णु वामन अवतार में एक छोटे ब्राह्मण के रूप में बलि राजा के पास आए और उन्हें 3 पग भूमि मांगी। बलि ने उनका आकार देख के उन्हें दे दिया। हालांकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह देख लिया ये कौन है, और उन्होंने आगाह भी किया कि बलि ऐसा प्रॉमिस ना करे, पर बलि राजा बलि नहीं माने। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, वैसे ही वामन ने एक बड़ा आकार धारण किया। पहले पग में उन्होंने सारे पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिए, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग, नक्षत्र, तारे सब नाप लिए, या यूं कहिए कि 2 पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब वो तीसरा पग कहाँ रखें? तो उन्होंने बलि से कहा कि 2 पग में तो मैंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है, और आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, तो मैं अब ये अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने अपना सिर आगे किया और वामन अवतार से हाथ जोड़कर बोले कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख सकते हो। इससे बलि का अंत हुआ, राजा बलि का अंत हुआ। पर विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजा बलि को एक वर दिया कि अगले ब्रह्मांड की सृष्टि में वो इंद्र का स्थान जरूर प्राप्त करेंगे, और तब तक उनकी आत्मा वैकुंठ लोक में विश्राम करेगी। यहीं से ज्योतिष का एक सूत्र निकलता है। जहां भी बृहस्पति आपके कुंडली में जिस भी घर में बैठा है, उस घर का एक कारक तत्व, एक सिग्निफिकेंस बृहस्पति खत्म कर देता है, और ये कारक तत्व आपके मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। वो बृहस्पति आपको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, और इसलिए वो एक कारक तत्व, कम से कम एक कारक तत्व जहां भी बैठा है या जहां दृष्टि दे रहा है, वहां वो समाप्त कर देता है। और ये तब और ज्यादा निखर के आता है, प्रोमिनेंट होके आता है, अगर बृहस्पति के साथ कोई ना हो, कोई दूसरा ग्रह बैठा ना हो, या वो किसी उच्च या मूल त्रिकोण की स्थिति में हो, या वो उस घर को देख रहा हो, उसकी दृष्टि 5वीं या 9वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि ऐसे घर में हो जहां पे कोई ग्रह ना हो। तो इसके एग्जाम्पल में हम भगवान राम का कुंडली देखते हैं ना। आप में से काफी लोग मुझे ये कहेंगे कि भगवान राम की जन्म तिथि, जन्म का समय आपके पास नहीं है, तो कैसे उनकी कुंडली बनाई जा सकती है? वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़े, तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने राम के जन्म को के समय कौन सा ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में है, ये उन्होंने
उस वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। यानी कि आप उनका बर्थ टाइम बिना जाने आप उनकी कुंडली, प्रभु राम की कुंडली बना सकते हैं। और उसमें आप ये देखेंगे कि बृहस्पति उच्च का होके उनके लग्न स्थान पर बैठा है। उच्च का मतलब बृहस्पति बहुत पावरफुल है, उसको जो भी रिजल्ट डिलीवर करना है वो जरूर करेगा और बहुत प्रभाव से करेगा। और क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है, लग्न का एक सिग्निफिकेंस, एक कारक तत्व होता है कि हम अपने जीवन में कितना कंफर्ट, कितना आराम, कितना सुख भोगते हैं, मटेरियल सुख भोगते हैं। तो अगर आप राम का जीवन देखेंगे, जब उनको राजकुमार की पदवी दी जा रही थी, ठीक उसी समय विश्वामित्र मुनि आते हैं और उन्हें जंगल में लेके चले जाते हैं। यानी कि राजकुमार की घोषणा होकर भी उन्हें वो पद नहीं मिलता है। फिर जब वो राजा बनने जाते हैं, जब उनको राजा बनाने की स्थिति आती है, दशरथ ऐलान करते हैं, उस समय उनकी माता कैकेयी ये मांग करती है कि प्रभु राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। एक बार फिर वो राजा का जो सुख है वो नहीं भोग कर पाते। यहां तक कि जब वो वापस भी आते हैं, उसके बाद भी जब को उनको सीता को भेज देना होता है, उसके बाद भी ये लिखा गया है कि वो जमीन में सोते थे और राजा की तरह नहीं रहते थे। तो देखिए किस तरह बृहस्पति उच्च का होकर लग्न में बैठ के उनका एक कारक तत्व को नष्ट कर रहा है। एक और बात, जब भी बृहस्पति की विंशोत्तरी दशा आती है, 16 साल की यह दशा होती है आपके जीवन में, जब भी बृहस्पति की दशा आती है, तब ठीक बीच के जो 2-3 साल होते हैं, उस समय आप कुछ ऐसा कर जाते हैं या परिस्थिति आपसे कुछ या ऐसा करवाता है कि आप एक स्टेप लेते हैं बिना जाने कि इसका अगला स्टेप मैं कैसे लूंगा। जैसे कि आपने नौकरी छोड़ दी, जबकि आपके हाथ में कोई नौकरी नहीं है और आपको उसके बाद समझ में नहीं आता है कि मैं कहां जाऊं, कैसे मुझे दूसरी नौकरी मिले या अपने मैं करियर को कैसे बनाऊं। कई लोग अपना घर छोड़ देते हैं जबकि उनके पास दूसरा घर नहीं होता या वो उन्होंने सोचा नहीं होता है कि वो इसके बाद कहां जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है बृहस्पति आपके कहां पे है, उसकी कैलकुलेशन भी हो सकती है, पर मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं। विंशोत्तरी की दशा, महादशा जब बृहस्पति की आती है, बीच के 2-3 साल में इंसान ये करता है। और किसी किसी की बृहस्पति एकदम जन्म के बाद ही आती है, तो वो बचपन में होता है या काफी बुढ़ापे में होता है, जब उनके लिए कुछ करने को नहीं है। तब ये जनरली किसी और महादशा में, जब बृहस्पति की अंतरदशा आती है, उसके बीच में इंसान ये कर जाता है या परिस्थिति उसे ये करवाती है। और उस समय का सबसे बड़ा रेमेडी या उपाय यही है कि उस समय आप अपने जीवन में किसी के कांटेक्ट में ऐसे आते हैं या रहते हैं जो आपको सलाह दे सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, यहां तक कि एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है कोई। बहुत जरूरी है कि उस समय आप उस एक आदमी पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि वो जो घड़ी है, वो 2-3 साल है महादशा में, वो आपके भरोसा को चेक करता है। बृहस्पति भरोसा का भी कारक है और वो अपने पीरियड में, अपनी दशा में वो आपका भरोसा चेक करता है। और ये क्यों होता है? जो बीच का पीरियड होता है जुपिटर के महादशा में, बृहस्पति के महादशा में, यह मीन राशि को सिग्निफाई करता है। मीन राशि कुंडली में या जोडियाक में अंतिम राशि है। इसको अंधेरे का राशि बोला गया है, यानी ये आपको अंधेरे में डाल देता है। और जब ये आपको जीवन के अंधेरे में डाल देता है, तो उस समय आपका भरोसा या किसी पर भरोसा, यही 2 चीज आपको काम आता है, आपको उजाले में ले जाने के लिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में से जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।